Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be in best of your health, and you will be very eager to know the very first phylum of this very kingdom, animalia. दुआ पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा मेरे साथ, मैं भी पढ़ता हूँ कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, और इससे अच्छी दुआ ज़ाहिर है कोई नहीं हो सकती, और ज़ाहिर जिस हस्ती ने की है वो भी मार्वेलस। हम बात ये कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आज हम जिस फाइलम को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पोरीफ्रा। पोरीफ्रा का मतलब क्या है और इसे सबसे पहले किसने कॉइन किया था, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, इनकी मेरे पास कितनी क्लासेस हैं, कितनी टाइप्स हैं, ये और बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू आर ready, your eyes are open, your brain is open, your ears are open, and you are eager to know the details of the very first phylum of animal kingdom, that is called as the phylum Porifera. Right? And whenever we say the word Porifera, it means that they have got pores on their bodies. Look at this, at least 4 or 5 images. What is the common thing amongst all these organisms? Yes, perfectly right. All of them have got what? The pores on their body. Therefore, we want to say that these organisms have got only one unifying character, and that very character is presence of the pores. Therefore, we are going to group them into a phylum that is called as Porifera. Right. Now, we want to see what is its origin. You know, we have discussed in the phylum, in the kingdom, that was basically none other than Protoctista, right? You know, we have discussed the phylum Protoctista. And you know, these particular Protoctists, they have got a very special type of, you can say, cells. Those are called as basically quinoflagellates, right? I think if you recall my previous lecture, so I said that these particular quinoflagellates, they have played a very, very unique role in the evolution, right? और कैसे रोल प्ले किया है, आज वक्त आ गया है कि हम उस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करें, राइट? लेकिन बहरहाल हम सिर्फ यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कि these particular porifers, they have got their root in the kingdom Protoctista. Right. Who first of all coined the term Porifera? The answer is Robert Grant. Robert Grant was the first person who you can say use or group these organisms on the basis of pores in their bodies. Hence, we can say that first time the term Porifera was coined by the Robert Grant. And if we want to discuss what their taxonomy क्या होती है, हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया, अरेंज कर दिया इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों की बुक में ये लिखा गया है कि हमारे पास फाइलम पोरीफेरा की तकरीबन 5000 स्पीशीज है, लेकिन मैंने किसी और बुक में ये भी पढ़ा है, definitely, being student of Lahore board by Lahore, you must remember this term, this value, this is 5000. But actually, this particular 5000 is not the ultimate, because every rising day is producing or having information of the new species from different phyla. So, up till now we have discovered more than 7000. It is not 7000, it is more than 7000 species. However, it is confirmed that out of these 7000 species, 150 स्पीशीज ऐसी हैं कि जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, बाकी सारी की सारी स्पीशीज दे आर मेरीन इन ओरिजिन। तो ऐसे करते हैं कि हम इसके लिए 2 डिफरेंट कलर का वाटर यूज करते हैं, हम पेंस यूज करते हैं। बिगर वैल्यू के लिए हमने समंदर का पानी के लिए ये टर्म यूज की है, सो दैट पर्टिकुलर इज मेरीन। व्हेनेवर वी यूज द वर्ड मेरीन, इसका मतलब है कि ये समंदर में पाई जाती। the word is not marine, the word is marine, right? And 150 species, they are basically living in the fresh water.
therefore I am using even more fresh color for it. So 150 species are existing in water. Important, none of the species is existing on the terrestrial or the land. It means these organisms are perfectly or exclusively aquatic animals. सिर्फ और सिर्फ पानी में रहती हैं. एक बात आपको और बतानी है कि वो वाली स्पीशीज जो फ्रेश वाटर में होती हैं, अगर हम ये चाहें कि वो जाके समंदर के पानी में रहें तो दे कैन नॉट सर्वाइव, दे विल जस्ट डाई. सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ हैबिटेट. कुछ स्पीशीज का हैबिटेट, इफ somebody asked you what is basically habitat, you must answer the address of the organism. Probability of the finding of the organism where maximum is called as what? The habitat. 150 स्पीशीज का हैबिटेट फ्रेश वाटर और बाकी स्पीशीज का हैबिटेट समंदर, राइट. अगर मैं इसकी क्लासेस बनाऊं तो मेरे पास इसकी 3 क्लासेस हैं. उनमें से जो सबसे पहली क्लास है उसका नाम है क्लास कैलकेरिया, राइट. मैंने एब्रिविएशन लिख के रखे हुए हैं ताकि ज़ाहिर है मैं भी ना भूलूं और आप भी ना भूलें. तो वेरी फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज क्लास कैलकेरिया. एंड इफ यू वांट टू फाइंड the unifying character of these organisms, so they are basically very rich in concentration of calcium carbonate, right. जो मेरे पास दूसरी क्लास है उसका नाम है मेरे पास what? क्लास डेमोस्पॉन्जिया. एंड दिस वेरी क्लास, इसमें जो यूनिफाइंग कैरेक्टर है वो प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन है. एंड द थर्ड क्लास इज, अगेन इट्स नेम इज बिट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. जैसे कि मैंने पहले इसको डिवाइड कर लिया है 3 पार्ट्स में, तो मैं भी ये चाह रहा हूं कि आप इसको 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करके याद करें. फॉर एग्जांपल, वेरी फर्स्ट पार्ट इज हेग्स, HEX, हेग्स, एंड अदर पार्ट इज एक्टी, ACTI, एक्टी, एंड देन नेलिडा, NELLITA. Hegs, Acti, Nelida, right? So 3 classes are number 1 Calcarea, number 2 Demospongia, and number 3 is Hegs, Acti, Nelida, right? So ये जो मेरे पास 3 classes हैं, they can be represented by few examples. उनमें से examples ही नाम लिख रहे हैं यहाँ पे. For example, उनमें से एक का नाम है मेरे पास क्या? Sycon, 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 right. Other one is Spongilla, right. Other one is Spongilla, 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 right. It is the second example. And the third one is LEUCO, Selenia, SELENIA, Leucoselenia. And last one is, but not the least, is Euplectella, Euplectella. तो ये मेरे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं इस पर्टिकुलर फाइलम की जो आप लोगों की बुक में गिवन है. नाउ वी वांट टू pace up the lecture, और now we want to study general characteristics of this particular group. तो जो सबसे पहली बात यह है कि हमने देखना है कि what is the evolutionary status, कि ये किस मकाम पर खड़े हैं एवोल्यूशन की लाइन पे. जाहिर है मैंने इसी पॉइंट पे आप लोगों से कल जो डायग्राम डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने एक स्लंट लाइन लगाई हुई थी और उस पर्टिकुलर स्लंट लाइन के ऊपर हम लोगों ने सफर किया था किसका? एवोल्यूशन का. तो अगर हम उस पर्टिकुलर लाइन पे देखें कि ये वाला फाइलम का एग्जिस्ट करता है तो ज़ाहिर इट इज एट द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर. ज़ाहिर पहला फाइलम है ये, तो ये उस पर्टिकुलर लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर मैं देखूं तो आपको याद होगा तो मैंने ये बात की, दे आर जस्ट सेल्स. व्हेनेवर वी से दे आर जस्ट सेल्स, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नो tissue level organization. It is important. There is no tissue level organization. Right? No tissue level organization. Right? अब इसमें जो सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 किस्म के हैं. उनमें से एक किस्म के सेल को मैं क्या नाम देता हूं?
pinacocytes. Pinacocytes. These particular cells, they are flat and they are basically protective in nature, and they are making the outermost wall of the organism, and that very outermost layer is called as nothing other than ectoderm. Other than what? Ectoderm. So जो बाहर वाले सेल्स हैं वो मीज एक्टोडर्म, वो किसकी बनी हुई है? पिनाकोसाइट्स की बनी हुई है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसके अंदर वाले सेल्स की बात करूं तो दे आर मेड अप ऑफ क्वेनोसाइट्स. कोएनोसाइट्स. और ये जो मेरे पास क्वेनोसाइट्स हैं, अगर मैं इसको क्या करूं, आप लोगों के सामने रखूं, तो आप क्या देखेंगे कि लुक एट दिस इमेज, कि ये एक ऐसा सेल है कि जिसके ऊपर एक कॉलर लगी हुई है. राइट, इट इज अ कॉमन सेल. अगर आप इसको किसी सेल से थोड़ा सा मुशाबे करना चाहें तो आपने अब तक डिफरेंट प्लांट किंगडम में या और जगहों पर भी क्या पढ़े थे? मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स. दे आर समथिंग लाइक अ स्पर्म. राइट, जाहिर एक सिंगल मेरे पास क्या है? साइटोप्लाज्म वाला सेल है. दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड विद द टेल फॉर इट्स इफेक्टिव प्रोपल्शन. बट look at this, that very sperm like cell, it has got a collar, right? तो इस particular collar sperm को हम लोग नाम कह देते हैं क्वेनोसाइट. राइट, और इस पर्टिकुलर क्वेनोसाइट की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो जाहिर है ये वाले सेल्स उसकी बॉडी के इंटीरियर में पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं. तो ये दो किस्म के सेल्स हो गए मेरे पास टोटल यहाँ पर है. हाँ, इनकी फंक्शनल असिस्टेंस के लिए मेरे पास इन दो लेयर्स के दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट है जिसे हम नाम के देते हैं मीसेनकाइमा. और अगर मैं इस मीसेनकाइमा की बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को पर्टिकुलरली जो सेल्स नजर आते हैं उन्हें हम नाम देते हैं अमीबॉइड सेल्स. और ये जो अमीबॉइड सेल्स हैं, दे आर डूइंग लॉट मोर फंक्शंस फॉर दिस class of the organisms. For example, they are playing a very key role in the reproduction. How they are playing their role we shall discuss in the end of this lecture. So body wall basically consists of pinacocytes and quenocytes, and this particular body wall definitely have got a cavity inside, and that very cavity is called as, this particular cell basically have a cavity inside, and that very cavity is called as spongocele. Spongocele. Right. So अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, and that very point is called as size and shape. Look at this. मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे काफी इमेजेस लगवाए हैं. Look at all these images. तो you will find कि यहाँ पे हमारे पास बहुत छोटी सी स्पॉन्ज से लेकर एक बहुत बड़ी स्पॉन्ज प्रेजेंट. इट मीन्स कि अगर मैं इनके साइज और शेप की बात करूँ तो उसमें बहुत ज्यादा वर्सेटिलिटी पाई जाती है. लेकिन जो नाम आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, जो आप लोगों को एक बड़ा प्रेशियस नंबर दिला सकता है, वो नाम है स्टूडेंट्स स्कॉलीमेस्ट्रा जैबुनी. राइट, और आपको पता है कि हम जीनस के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्पीशीज का नाम हमेशा हम लोअर केस से लिखते हैं. अब आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इमेज को देखें. ये एक बैरल यू कैन से के स्पॉन्ज है, और आप देखेंगे इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर तक हो सकती है. दैट इज डेफिनेटली अ ह्यूज ऑर्गेनिज्म. सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी. अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज द वाटर कैनाल सिस्टम. आप लोगों ने देखना ये है कि आप लोगों के स्पॉन्जेस में देयर इज अ वाटर कैनाल सिस्टम, एंड दैट वेरी वाटर कैनाल सिस्टम इट कैन बी वेरी सिंपल, राइट. और इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर हम देखें एवोल्यूशन, तो आहिस्ता आहिस्ता इट इज बिकमिंग व्हाट द कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स. इसके लिहाज से मेरे पास सिंपली, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मेरे पास 3 किस्म का कैनाल सिस्टम है. तो जो सबसे पहली टाइप का है दैट इज कॉल्ड एज एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम. ये सबसे सिंपल होता है, इट इज नंबर 1. और दूसरी टाइप का मेरे पास कैनाल सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज साइकॉन टाइप. नंबर 2 इज कॉल्ड एज साइकॉन टाइप. और जो तीसरी टाइप का कैनाल सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम. ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम. अब आपने जरा गौर से ये देखना है कि इनमें सबसे सिंपल
क्या है, एस्कॉन टाइप। लेकिन अगर मेरे पास एक एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम को मैं क्या करूं, ऊपर से प्रेस करूं, राइट, और उस प्रेस करने की वजह से इसके अंदर इनवर्ट फोल्ड्स बन जाएं, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पे उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम बनेगा, जिसका नाम मेरे पास क्या होता है, साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कैनाल सिस्टम को देखूं तो जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस वाले केस में द वॉल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे आर मच मच थिकर। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं एस्कॉन टाइप से ल्यूकॉन टाइप की तरफ मूव करूंगा तो ऑर्गेनिजम्स की जो वॉल्स है वो भी थिक होती चली जाएंगी, यानी कि मल्टी सेलुलैरिटी भी इंक्रीज करती जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ठीक है। प्लस अगर आप ये देखें तो नंबर ऑफ सेल्स जिन्हें हम क्या बोलते थे, क्वेनोसाइट्स, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। तो एवोल्यूशन नजर आ रही है मुझे कि हम लेस सिंपल से लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ को मूव कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, राइट। और जाहिर है जितनी ज्यादा मेरे पास ज्यादा होंगे क्या क्वेनोसाइट्स, उतनी ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इस पर्पस के लिए आप लोग ये देखेंगे कि नंबर 1 इमेज देखें, इट इज फॉर एस्कॉन टाइप, और ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, नंबर 2 दैट इज कॉल्ड साइकॉन टाइप, और नंबर 3 किसमें टाइप हो गया, ल्यूकॉन टाइप में। और इस पर्पस के लिए आपने ये देखना है कि आखिर रब्बुल इज्जत ने इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस वाटर कैनाल सिस्टम को क्यों रख दिया है। तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि दिस पर्टिकुलर वाटर कैनाल सिस्टम इट इज गोइंग टू कैरी आउट इट्स रोल इन न्यूट्रिशन, इन रेस्पिरेशन एंड इन सर्कुलेशन, राइट। अब व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रिशन, खाता पीता क्या है, खाना पीने का जो वे है वो क्या है। तो इसके लिए आप देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि दिस ऑर्गेनिज्म इट इज बेसिकली जनरेटिंग, मैंने वर्ड यूज किया जनरेटिंग, ये खुद से पैदा करता है व्हाट, वाटर करंट्स, and these particular water currents they always take water from the lateral sides of the organism and then push it towards the central cavity that is called as the spongiocele, right. And this particular water current is carrying definitely food with it, and these particular very intelligent chronocytes they are not only creating a unidirectional flow of the water, but it is also capturing the food for themselves, and also from the amoeboids and also from the pinacocytes. So all sort of the food, it totally depend upon the activity of what, the chronocytes. So therefore chronocytes are much more important, and if their number is increasing, it means their ability to exploit the resources present in the surrounding is also increasing. So evolution is taking place from left side to right side. So हम बात ये कर रहे हैं कि ये फूड को फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद फूड को खा लेंगे। Therefore, we should say कि these marvelous organisms they are very excellent what filter feeders. लेकिन अगर मैं इस वीडियो को देखूं, इसमें जरा गौर से देखें, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म मुझे बज़ाहिर बड़े सुकून में, पीस में नजर आ रहे हैं, बिकॉज वाटर इज वेरी मच क्लियर। लेकिन जरा गौर से देखते हैं कि क्या ये ऑर्गेनिज्म इतने ही आराम और सुकून से रहते हैं। तो आंसर इज नो, दे आर वेरी एक्सेलेंट पंप्स। जैसे मैंने आपको बोला कि दे आर कॉन्स्टेंटली फेचिंग वाटर फ्रॉम द साइड्स टुवर्ड्स द सेंटर। कैन वी प्रूव इट? Yes, we can prove it with this video. Look at this. कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साइड्स पे यहाँ पे क्या फेंक रहे हैं? Yes, non, you can say damaging और biological dye, right? अब इस डाई का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये है कि इस ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. It is important. We love the nature. We are going to spray this particular dye, fluorescent dye in its surrounding. And look at this. Right after its injection, this particular dye is being sucked in, being pumped in, and now it is getting out of the osculum or the mouth. So they are very excellent pumps. They are basically carrying out the process of filtration. Whether this process is good or bad, so you must believe it is good. Why it is good? Because it is going to clean up the very important thing that is falling from the top of the ocean to the bottom of the ocean, that is called as a detritus. तो ये उस डेड ऑर्गेनिक मैटर की बारिश को जिसे हम नाम कह देते हैं डेट्राइटस। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि डेट्राइटस क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि इट इज द रेन ऑफ
DOM. Whenever we see the term DOM, it stands for dead organic matter, DOM. So it is going to carry out the cleansing of the waters of the ocean, right? Plus ये बैक्टीरिया को भी किल कर रहे हैं. प्लस ये एक हम टर्म यूज करते हैं प्लैंकटन. इफ somebody asks you what is meant by basically plankton, तो आप बोलेंगे कि these are floating either animals or plants. दोनों चीजें जो फ्लोट करती हैं, बहुत छोटे साइज की हैं, ये उसको कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद अपनी फूड का जरिया बना लेते हैं. सो इट मीन्स कि देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज either detritus or they may be the planktons, right? अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे हो रही है. वाटर द चीफ सोर्स ऑफ देयर लाइफ. आप देखेंगे यहाँ पे कि रेस्पिरेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा O2 नहीं चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे आर sessile in nature, they don't move, they don't have to carry out the production of excessive ATP, so the respiration just depend or just need oxygen for very important what amoeboid cells only, and for the reproduction only, or for the cranocytes to carry out the pumping of water in one direction. To this purpose, oxygen is basically coming from the water and CO2 is being released into the what? Osculum, spongocoel, and will just leaving the body through the osculum, right? So दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखिए तो इसके साइडों पे पोर्स हैं जिन्हें हम नाम के देते हैं ऑस्टिया. इन ऑस्टिया में से वाटर ज्वाइन होगा और ज्वाइन होने के बाद ये कैनाल के अंदर से गुजरेगा जिसे हम बोलते हैं वाटर कैनाल. इसके दो एंड्स हो सकते हैं, एक बायोवल एंड जिसे मैं बोलता हूँ इनहेलेंट पोर, और इसकी जो अंदर वाला पोर है उसे मैं क्या बोलता हूँ एक्सहेलेंट, या अंदर आने वाले पोर को मैं इनकरंट और बाहर जाने वाले को एक्सकरंट पोर का नाम दे सकता हूँ, राइट? या अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गई है तो फिर ये कैनाल के तौर पे काम भी कर सकती है. तो जहां जहां से वाटर एंटर हो रहा है दैट वेरी ट्यूब इज कॉल्ड एज इनकरंट कैनाल, और जहां जहां से पानी बाहर निकल रहा है उसे मैं बोल रहा हूँ एक्सकरंट कैनाल. इनकरंट कैनाल, एक्सकरंट कैनाल. और इस कोर्स में, इस जर्नी में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑक्सीजन भी, फूड भी, CO2 भी, राइट? So this is the basic role of this very marvelous structure that we name it as what? Water canal system. And now we want to move to the next point, that is called the locomotion. What do you think? These particular organisms can move? The answer is no. These organisms cannot move, and the organisms that cannot move are called as what? Organisms that cannot move, they are called as sessile. You must keep this term in your mind, that organisms that cannot move are called as sessile organisms. Sessile, that cannot move, right? Now, really, they cannot move. The answer is no. They can move, however they can move at the stage of their larvae. So we must say that their larval stages are motile. They can move. And oh my god, look at this, you can say video. They are literally showing some movements, particularly around their osculum, right? इस particular osculum को खुलना भी है और बंद भी होना है depending upon the inner situation of the body. However, it is important, they are not that very quick responsive to the stimuli. Sometimes we stimulate them and then they show the response for the longer time. It means that whatever they are doing, they keep on doing it for even a longer period of time. Right? जैसे कि मैंने बोलना हो क्या तो मैं कहता जाऊँ क्या तो मैं एक ही बात बार-बार किए जा रहा हूँ. So same is the case here with their movements. Although they are capable of doing movement, but their movements are not that much coordinated. Next is excretion. If we look at the excretion, so we have to find their habitat. Their habitat is definitely aquatic. और अगर ये पानी में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें तो plentiful water available है. जब plentiful water available होगा तो no need to convert more toxic substances into less toxic substances. तो फिर क्या किया जाए कि जब भी कोई अमाइनो एसिड खाओ उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाली अमोनिया को ही बॉडी में से बाहर निकाल दो,
प्लस एक और चीज देखो कि इनके पास तो लिवर है ही नहीं दैट कैन कैरी आउट द कन्वर्जन, तो फिर ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को ही वाटर में रिलीज कर देते हैं. देयरफॉर वी शुड से देम एमोनोटैलिक्स. Ammonotelics are the organisms. Those are basically living in water and they are carrying out excretion of ammonia directly. Right. I think too much on this column of the board and we should jump to the next column. Look at this. We are going to start with the nervous system. I think we have talked much about nervous system. This particular nervous system is not that much efficient, right? अगर मैं इसको देखूं तो इसका नर्वस सिस्टम इस लिहाज से तो लेस एफिशिएंट है कि ये जो कुछ करता है वो करता ही जाता है. लेकिन ये एक बड़ी पते की बात भी आप लोगों के लिए कि अभी हमने आप लोगों को एक वीडियो दिखाई थी जब मैंने एक फ्लोरेसेंट डाई को उसके विसिनिटी में ड्रॉप किया तो उसने बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में सारे के सारे क्रेनोफ्लैजिलेट्स ने मिलकर उसको इंजेक्ट किया इनसाइड द बॉडी एंड देन रिलीज्ड फ्रॉम द ऑस्कुलम. तो देखो ये जो इतनी ज्यादा एक्टिविटी है ये डेफिनेटली किसी बहुत एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन की वजह से है, राइट? सो व्हाटएवर दे डू दे कीप ऑन डूइंग इट बट दे आर डूइंग इट इन वेरी हार्मोनियस वे. So we should say कि although their nervous system is not that much efficient, but it is very much related. It is very much organized. So most of the cells they respond in a you can say definite way. So nervous system के बाद आ जाते हैं हम लोग इसके skeleton की तरफ. तो skeleton में आप लोगों को जो मैंने आपको बात बतानी है वो ये कि जाहिर है एक इसके बाहर वाले सेल्स थे, आपको याद है उसका नाम क्या था? पिनाकोसाइट्स. ठीक है, पहले वाले सेल का नाम क्या था मेरे पास? पिनाकोसाइट्स. और अगर मैं आप लोगों को कॉलर्ड सेल्स की बात करूं तो दोज वर क्वेनोसाइट्स, राइट? और फिर आपको याद है कि इसमें हमारे पास अमीबॉइड सेल्स भी थे, राइट? और ये सारे के सारे सेल्स दे आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर बॉडी. लेकिन मैं इन पर्टिकुलर सेल्स को आपस में लिंक कैसे करता हूँ, इनको जोड़ के कैसे रखता हूँ? या अगर मेरे पास बहुत सारी बुक्स है घर में तो मैं इन पर्टिकुलर बुक्स को ऐसे ही बिखेरने देता हूँ या मैंने उसके लिए कोई रैक बनाया हुआ है जहां पे मैं इन पर्टिकुलर बुक्स को उठा के तरतीब से रख देता हूँ. सफाई तो यहाँ होती है, राइट? अगर आपके ख्याल में वो डिस्टर्ब बुक्स आर बैड तो आप क्या करेंगे कि आप उन बिखरी हुई बुक्स को उठाएंगे और उठा के किसी एक बहुत ही मुहज्जब इंसान की तरह से बुक रैक में रख देंगे और अदरवाइज यू विल फील लाइक एनी बैड पाकिस्तानी. सो ये जो मेरे पास सेल्स है नेचर ने उसको ऐसे नहीं फेंका हुआ बल्कि किसी खास तरीके से किसी खास पैटर्न में अरेंज किया हुआ है. और उस पर्टिकुलर पैटर्न को बनाने वाली जो चीज है मेरे पास, दोज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक सेल्स, वी कॉल देम एज अ स्पिक्यूल्स, राइट? तो ये जो एक क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे मेरी बॉडी का, जैसे कि वो काम जो मेरी बॉडी में मेरी बोन्स कर रही हैं वही वाला काम इन ऑर्गेनिज्म में स्पिक्यूल्स कर रहे हैं. सो व्हेन दीज स्पिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ दे मेक अ स्पेसिफिक पैटर्न और उस स्पेसिफिक पैटर्न पे फिर मेरे पिनाकोसाइट अरेंज होंगे और उस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर वाली साइड पे ज़ाहिर है पिनाकोसाइट्स अरेंज होंगे और इनके दरमियान में फिर घूमते फिरेंगे, मौज करते फिरेंगे कौन? Amoeboid cells. So spicules, they may be you can say like a single you can say needle or they may be tri-radiated. Look at this image. तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्राई नजर आए और ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्राई जो है आपस में कंबाइन होने के बाद फिर डिफरेंट पैटर्न्स और भी बना लें. अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन इज बेसिकली वर्ड टू प्रोड्यूस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, यू नो, कोई नई बात नहीं, आपने ग्रेड 9 10 में बहुत पढ़ के हुआ इस बात को. One of them is called as asexual reproduction. In this case of asexual reproduction, we don't have to have two organisms. We can have only one organism, and that organism can give rise to many other organisms like it in a very less period of time. So it is a very quicker way of reproduction. So what are the possible 2 or 3 ways? One of them is called as budding.
तो माय डियर स्टूडेंट्स, बर्डिंग क्या होती है? बर्ड इज नथिंग अदर देन जस्ट एन आउटग्रोथ। अब जो बर्ड है ये इस लुक एट दिस कि इस ऑर्गेनिज्म के बाहर भी प्रोड्यूस हो सकती है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकती है, राइट? In any case, whether it is internal or external, whenever it will detach itself from the body, it will give rise to the new organism. And then we have the gemmules. They are, you can call them as inner birds. So these gemmules, they are basically producing on the inner side of the body, and whenever they will detach, they will give rise to the new organism. Still another thing is there that is called as a fragmentation. ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली टूट जाए तो इस ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, बल्कि ये जो पीस टूटेगा it will give rise to the new individual. So this type of reproduction is called as asexual reproduction. And now we want to move to the next thing, last thing, that is called as sexual reproduction. If you look at the sexual reproduction, you know we have to have two different sexes or genders. So you know either, we have to have two organisms. One of them should be the male, other one should be the female. Now, if we look at these organisms, they are not very specific in their jobs. However, they may be hermaphrodite. Whenever we use the term hermaphrodite, it means these organisms have got both the testes and the ovaries or the sperms and the egg in the same organism. So therefore, they are called as what? Hermaphrodite. Lekin it is not true for all the sponges. Different types of sponges may be monoecious, other may be dioecious, right? Whenever we use the term monoecious, it means one organism have got the both characters or both genders, right? So the organism may have two sexes in the organism or one sex per organism. दोनों possibilities हो सकती हैं. So अब ये provide क्या करेंगे? They will provide me the sperms and they will provide me the eggs. They will provide me the sperms or other ones may provide what? The eggs, right? और जब यहाँ से sperms produce होंगे तो दो chances हो सकते हैं. पहला चांस क्या हो सकता है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म अपने ही बॉडी के एग्स को फर्टिलाइज कर दे. अगर ऐसा हो तो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ऑल्दो इट कैन हैपन बट इट इज नॉट एनकरेज्ड. It is not appreciated by the nature. Nature always like in the recombination of the genes. Therefore, most of the time the sperms travel from one organism to the other organism, despite of the fact that both are hermaphrodite. But both try to exchange their sperms. This is called as what? Cross-fertilization. So we must write over here that preferred fertilization is cross-fertilization. And nature always discourages self-fertilization. Now, when sperm combined with the egg, we have nothing other than the zygote, right? और अगर ऐसा हो कि एक zygote किसी भी स्टेज पे रुके बगैर एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, मेच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसे बोलता हूं कि डेवलपमेंट वाज डायरेक्ट. लेकिन अगर इसमें डिफरेंट स्टॉप ओवर स्टेजेस आती हैं, राइट, कि मैंने एक रास्ते में चला फॉर एग्जांपल और मैं एक खास स्टेज पे जाके रुका, वहां पे मैंने फिर एनर्जी को गैदर किया, रिसोर्स को गैदर किया और डेवलपमेंट मैंने कंटिन्यू की, फिर मैं एक और स्टॉप पे जाके रुक गया, जो एनर्जी मेरे पास पहले स्टोर थी वो यूज हो गई, कंज्यूम हो गई, तो मैं दोबारा से एनर्जी के सोर्स को गैदर कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ और फिर मैं क्या किया, मैंने डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया और फिर अपनी फाइनल मेच्योर स्टेज जाके रुक गया. तो इस किस्म की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो याद रखने वाली बात यह है कि ये जाइगोट इस वाले केस में किस तरह मूव करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से पास हो रहा है. इट पास थ्रू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की लार्वी बनती हैं उन लार्वी के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, राइट. ऑल इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एट दिस लेवल, बट अगर मैं आप लोगों को उस लार्वी के नाम बता दूं तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी दैट बैड, राइट. तो जो मेरे पास डिफरेंट किस्म के लार्वी हैं उनके हम नाम कहाँ लिख सकते हैं? चलें कोशिश करते हैं कि हम उन लार्वी के नेम्स यहाँ लिखते हैं. वन ऑफ द लार्वी that can be found in this group is called as amphiblastula. Amphiblastula. I think we must draw a line over here, so that we can differentiate it from the other, right? So second one
Very first is amphiblastula and the second one is parenchyma. parenchyma larvae. और स्टिल जो मेरे पास थर्ड किस्म का लार्वी है उसका नाम है ट्रैकिनेला लार्वी. ट्रैकिनेला. सो 3 डिफरेंट किस्म के लार्वी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एम्फीब्लास्टुला लार्वी, अदर वन आर कॉल्ड एज पैरेन्कीमुला लार्वी एंड लास्ट वन कॉल्ड एज अ ट्रैकिनुला लार्वी. सो ये डिफरेंट टाइप्स के लार्वी हैं या डिफरेंट किस्म की जो क्लासेस हैं और स्पॉन्जेस उसमें एग्जिस्ट करते हैं. और ये लार्वी डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था कि दे आर देयर एंड देयर फंक्शन इज जस्ट वन, eat and accumulate the four sources for the continuation of the growth and development. Once they are dead, then they will settle down after swimming for some time, and when they settle down, they will give rise to the new organ, you can say cycon, and that very new sponge will be definitely different from their parents in the terms of fitness, in the terms of survival, in the terms of evolution, because they are the product of sexual reproduction. So only advantage of sexual reproduction is to revive or to modify the DNA as per the induction of different types of environmental forces. After these larvae, now we want to discuss the last concept of this very topic, and that is called as importance. We don't have that much space in the end, so we should shift this particular topic over here. Now we want to write another topic that is called the importance. अब ये जो मेरे पास ग्रुप है इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. एंड दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी वेरी एक्सीलेंट कैल्शियम रिसाइक्लर्स. ये बहुत बड़ा रोल है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे आर एक्सीलेंट कैल्शियम रिसाइक्लर्स. लेकिन इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आमतौर पे जो स्पंजेस हैं उनका रोल वॉशिंग एंड बेडिंग में होता है. वॉशिंग एंड बेडिंग. ठीक है. आमतौर पे हम इसको अपनी जो कटी फटी एड़ियां होती हैं उसके ऊपर जो डेड सेल जमा हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑल्दो हम इनको सिंथेटिकली भी बना रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम इनको इसी पर्पज में यूज कर रहे होते हैं. और बहुत सी जगहों पर ये इस्तेमाल होती हैं इन सर्जरी. आपको पता है कि जो सर्जरी है उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है. तो दीज पर्टिकुलर स्पोरस ऑर्गेनिजम्स they are very very excellent absorber of the blood. ठीक है. तो जो सबसे अच्छी इस पर्पस के लिए स्पॉन्जेस मानी जाती हैं वो हमारी मेडिटेरेनियन सी की मानी जाती हैं. मेडिटेरेनियन सी की जो स्पंजेस है वो मानी जाती हैं. तो ये है just 3 uses. Number 1, they are calcium recycler. Number 2, they are used for washing and bathing. And number 3, they are very excellent soakers of the blood. Therefore, they are being used in surgery. So that's it for today. That's it for this you can say class. और कल हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए फाइलम के साथ, and that very phylum will be none other than Cnidaria or the Coelenterata. Right? Till that time, take very good care of yourself and your great parents. Always keep us in your prayers as well. और इन नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाओं के साथ कि आप अपने मार्क्स अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें और हमारे लिए भी नेक नामी का सबब बने. मैं चाहूँगा आप लोग इजाज़त और कहूँगा आप लोगों को अल्लाह हाफिज़.